attentive. Last class में एक presentation हुई थी about the hazard analysis and critical control points. We discussed about HACCP, what is a HACCP, and there were some terms, some new terms. और वहाँ पे ये बात हुई कि HACCP is actually the analysis of the hazards, and there are some critical control points which are present in the industrial productions. And HACCP is actually the process which ensures the formation or the production of the safe food products. HACCP तक जाने से पहले बहुत सारी पहले कुछ टर्म्स आएंगी जिन पे डिस्कशन करना मुझे लगता है थोड़ी ज़रूरी है. उन्हीं टर्म्स में बात करते हैं. यहाँ पे एक्चुअली HACCP अप्लाई करने का या डिफरेंट अदर मेथड्स इंडस्ट्रीज में अप्लाई करने का एक ही सिर्फ एम है, या आप कह लेंगे एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट वी हैव टू प्रोड्यूस द सेफ फूड फॉर द कस्टमर्स. क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल पे there are more chances of the contamination. Contaminants may be biological contaminants, chemical contaminants, physical contaminants, whatever they are. अगर contamination है food production के दौरान, raw material contaminated है, तो हमारी जो final product बनेगी that would also be contaminated. So this would not ensure the delivery of the safe food to the customer. So we apply all of these methods, we apply all of these systems, we apply all of these checkpoints to make it sure that we are going to produce the safe food for the customers, for the individuals. So let's start with some terms which are involved here in the production of the safe food. इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ whenever there was the production of the food at industrial scale, you can say that at the larger scale, बहुत सारी हमारे पास नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई. उसके साथ साथ कुछ न्यू स्टेप्स इंट्रोड्यूस हुए जिनको हमें हर हाल में फॉलो करना है ताकि इंश्योर किया जा सके कि कस्टमर तक जो फूड प्रिपेयर्ड फूड डिलीवर हो रही है दैट इज सेफ. These are different steps which may be ensured to reduce the contamination. Either this contamination is toxicological contamination or the microbiological contamination, because we have to reduce all type of contamination to produce the safe food. There were the introduction of some new concepts regarding the toxicology as well as the pathogenicity of the microorganisms. And these microorganisms are also relate with some intrinsic factors of the food, because we know that if the food has a neutral pH, if food is enriched with the nutrients, if the food has optimum temperature for the growth of microorganism. So these are the intrinsic factors. Intrinsic factors वो हैं जो indigenous factor हैं food के. क्या या मिसाल के तौर पे हमने बात की कि इंडिजिनस फैक्टर के तौर पे अगर फूड की पीएच न्यूट्रल है, अगर फूड में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, टेम्परेचर भी सूटेबल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट है कि वो वहाँ फूड के अंदर ग्रो कर सकें. तो हमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स को भी स्टेबल करना है ताकि माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके. इसके साथ साथ हमें कुछ एक्सोजिनस फैक्टर्स जो हैं उनको भी देखना है ताकि हम टॉक्सिकोलॉजिकली एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसको किसी तरह से फूड प्रोडक्शन में रिड्यूस कर सकें. तो दिस वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट. इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, that is named as HACCP. And you can say that HACCP is a system that have been developed to ensure that control is being achieved, that we are applying the control, that we are applying the measurements to control the growth of the microorganism, or you can say that to reduce the biological contamination or the pathogenicity of the microorganism, or in other words, you can say that to ensure the system that we are applying to minimize or to reduce the टॉक्सिकोलॉजिकल कंटामिनेशन. इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा मज़ीद इसमें टर्मिनोलॉजी की बात देखें तो यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल अप्रोचेस आएंगी, कुछ न्यू टर्म्स आएंगी, ऐसी कुछ न्यू टर्म्स जिनके बारे में इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड दैट दीज टर्म्स शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली, ताकि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे जब भी इनको अप्लाई करें तो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर क्राइटेरिया हो इन टर्म्स को मेंशन करने का. अब अगर जब हम बात करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ द सेफ फूड की, तो दो मेन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हुआ करती हैं. इफ वी टॉक अबाउट द डिलीवरी ऑफ सेफ फूड टू द कस्टमर और द प्रोडक्शन ऑफ द सेफ फूड टू द कस्टमर,
तो दो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, एक है द फूड प्रोड्यूसर और द इंडस्ट्री विच इज प्रोड्यूसिंग द फूड, and number two is the governmental agencies. Sometimes it may happen that food industry or the food producer is not master of that field, or you can say that in other words, they are not applying the proper measurement and they are not applying the proper procedures. So on the food producer, there is a supervisory role of the governmental agencies which make it sure that food industries are following the measurements, proper hazard analysis and critical control points are being followed to reduce the contamination. Either this contamination is biological or the toxicological. So you can say that governmental agencies, they may play the supervisory role as well as they may play the guidance role. They may conduct different seminars, and they may conduct different trainings for the industrial partners, and as well as they may conduct different kind of certification processes, and as well as they may have different kind of inspection procedures, and often they can go there for the inspection processes, infection purposes, and after infection they may issue the certification to the food industry. And just these certification, guidance, etc. is there to make it sure that food producer or the food industry is following the approaches which are required to produce the safe food. यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाता हूँ. पर्पस ये है अभी तक कि वी हैव टू एनालाइज द रिस्क. फॉर एग्जांपल, if the raw material is being collected in the industry and that raw material is being processed to the final product, from raw material to the final product there are a lot of points where there is a risk of the contamination. So we have to analyze the risk, we have to analyze the points where the risk can be. Actually, the main stakeholder is the consumer, and the point is that we have to deliver the safe food to the consumer. And दो consumer को ensure करने के लिए दो regulatory authorities हैं, as I told you in the previous slide. One is the food industry, number two is the regulatory agencies. फूड इंडस्ट्री क्या करती है कि फूड इंडस्ट्री एट सोर्स कंट्रोल्स अप्लाई करती है. फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री विल अप्लाई डिफरेंट कंट्रोल मेजरमेंट्स, डिफरेंट मेथड्स in the factory, in the industry, to make it sure that food that is being produced, this is safe. How can an industry produce the safe food? Industry can produce by applying the GMPs. GMP को generally हम कहते हैं the good manufacturing practices here, GMPs. So industry would apply some good manufacturing practices, the GMPs at source, in the lines or in the production units, to make it sure the food is safe for the customers. GMPs के साथ साथ दूसरा मेजरमेंट प्रोसेस हैसअप भी अप्लाई किया जा सकता है. इसके साथ साथ अगर हैसअप और GMP अप्लाई करने के बाद भी अल्टीमेटली हमारे पास अगर रिपोर्ट आती है कि देयर इज़ अ फेलियर, कि हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पा रहा, रिस्क को प्रॉपर एनालाइज नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ साथ आगे क्या होगा कि जो इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो फूड प्रोडक्ट बनेगी, नाउ दैट फूड प्रोडक्ट दैट मे बी कंसिडर्ड द कंटेमिनेटेड फूड. अब उस फूड को हम क्या करेंगे कि उस फूड को हम दोबारा से यहाँ से उस फूड की रिसाइकलिंग शुरू हो जाएगी, और उस फूड को फिर से उस प्रोसेस में से पास करेंगे, और फिर हम इंश्योर करेंगे कि जो हमने ऑलरेडी GMP या हैसअप अप्लाई किया है इसमें कोई कमी रह गई है, तो हम अब यहाँ पे इसको अगेन चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज, and after that again that food would be processed. If the food product was not failed and food product was safe for the customer, and then it would be delivered to the customer, and this would be considered as acceptable food product. This was the role of the food industry. Now, what is the role of the regulatory agencies? Regulatory agencies, they have to measure, they have to set the microbiological criteria. Microbial criteria would actually determine that how much number of microorganisms that may be present into the food. अगर उससे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं फूड के अंदर, तो इंडस्ट्री फूड को एक्सेप्टेबल कंसिडर नहीं करेगी. तो एक क्राइटेरिया होगा जो डिफरेंट फूड फॉर्मुलेशंस के लिए डिफरेंट हो सकता है. तो ये क्राइटेरिया कौन सेट करेगा? दिस क्राइटेरिया setting bodies are actually the regulatory agencies which is on the behalf of the government. इसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट इंस्पेक्शन मेथड्स को रन किया जा सकता है और एक सर्टिफिकेशन इशू की जा सकती है. इफ randomly we can check that randomly
the manufacturing procedures of the industries, or after checking if they are successful and if they are following all the SOPs, we can issue them the certificates. आप देखते हैं कि अक्सर फूड प्रोडक्ट्स या फूड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन अपनी मेंशन की होती है साथ में, फॉर एग्जांपल ISO सर्टिफाइड 3000 something, 9000 something. So these are the kind of certifications which have been issued by some regulatory agencies. इसके साथ साथ if we feel that industry is unable to follow the SOPs, we can issue we can provide them actually the guidance, we can provide them the training, the random trainings to follow the SOPs properly, or sorry. Okay, ji. If we observe that food industries are following all the guidance which have been provided by the regulatory agencies, it means that this food would be safe and would be according to the acceptable criteria. तो हम फिर इसको आगे प्रोसेस होने देंगे. इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद इसको देखते हैं कि अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं ये फॉलो नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली, तो फिर हमने उसमें क्या करना है. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये एक टर्म है, बड़ी कॉमन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, खासतौर पर फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है. This is actually the set guidelines for the practices that should be followed in the industries and industrial scale. तो ये अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है फॉलो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि जो सेफ्टी है कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए, सेफ्टी इज़ नॉट गारंटीड. इफ़ द सेफ्टी इज़ नॉट गारंटीड, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें प्रॉपर इसके साथ, बल्कि इसके बाद नहीं, पैरेलल टू दिस वी हैव टू प्रिपेयर द कंज्यूमर. कंज्यूमर को भी इस बात का पता होना चाहिए है कि जो प्रोडक्ट उसके पास आ रही है, प्रिपेयर्ड फूड आ रही है, वो यूज़ करनी चाहिए या नहीं, यूजेबल है या नहीं है. इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे ये ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट शुड कंडक्ट सम सेमिनार्स टू एजुकेट द कस्टमर, टू एजुकेट द कंज्यूमर. कंज्यूमर शुड बी अवेयर. अगर कंज्यूमर में अवेयरनेस होगी तो ही कंज्यूमर प्रिपेयर होगा और कंज्यूमर ये डिसाइड कर सकेगा कि चूँकि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं ये प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुई. इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करूँगा तो ये सेफ्टी या गारंटीड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगी. तो इफ़ द कस्टमर इज़ एजुकेटेड बाय द गवर्नमेंटल एजेंसीज और कस्टमर इज़ प्रिपेयर्ड, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, इंडस्ट्री वुड बी in a pressure to follow the good manufacturing practices, to follow the HACCP plans, to make it sure that food or the provided food that is following the criteria or the guidelines which are being implemented by the regulatory agencies. So this was actually the risk analysis. We can analyze the risk at different steps. We can analyze the risk, and we have ability to amend the contaminated points at different steps. For example, there may be the role of the food producer, there may be the role of supervisory agencies. ठीक है. Ultimate role हमारा क्या है कि we have to prepare the food which is acceptable, which is safe for the consumer. और इसके जो different steps हैं, we have talked about it. Up to this point, if you guys have any question, you may ask. ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, ये फूड इंडस्ट्री के सैंपल लेके उसकी खुद टेस्टिंग करके ये चेक करते कि सेफ है कि नहीं, यहाँ पे ये विजिट करती है और फिर वहाँ पे जजमेंट करते कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, उस बेसिस पे डिटरमाइन करते कि फूड सेफ है कि नहीं. इसके हर स्टेप पे होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है. फॉर एग्जांपल इसके रैंडमली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने सैंपल भेजने पड़ते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज़ को, डिफरेंट सैंपल्स, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का सैंपल, इन प्रोसेसिंग सैंपल, डिफरेंट लाइन का सैंपल, फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल. इसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं जो कि रैंडमली या मेरा ख्याल है एनुअली इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करती हैं उनके सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करने के लिए. और जब वो वहाँ पे विज़िट करते हैं तो फिर वो उनके सारे प्रोसीजर्स को, सारे SOPs को, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को रिव्यू करते हैं, उसको अपग्रेड करने के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं. दोनों स्टेप्स पे हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं PhD कर रहा था, तो हमारे पास वहाँ पे सैंपल्स आते थे
एक इंडस्ट्री थी, वो कुकम्बर एक्सट्रैक्ट बनाती थी, और वो कुकम्बर एक्सट्रैक्ट जो था वो बाद में मार्केट में फॉरवर्ड होता था फॉर कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो। इसके साथ साथ डिटोल का जो सोप था, ये 2 सैम्पल्स हमारे पास आते थे कुछ 4 महीने के बाद। ये पता नहीं किस रेगुलेटरी एजेंसी को जाते थे और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजती थी। तो फिर हम इसका टेस्ट कंडक्ट करते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही टास्क होता था कि आपने ये चेक करके बताना है कि इसके अंदर लिमिटेड या अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर है या इंक्रीज नंबर है। तो हम फिर उसका टोटल प्लेट काउंट करते थे और उसके कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स टेस्ट करके रिपोर्ट दिया करते थे कि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया और नॉट। तो इस तरह से रैंडमली भी ये चेक करवाया जा सकता है, और रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं दे हैव देयर रोल। They can use their own labs to analyze the samples, as well as they may have uh, there is the jurisdiction for that regulatory authorities. They may visit to the industries to review their SOPs and to check their GMPs. Okay. ओके सर। सर ये Any सर्टिफिकेशन देने का क्या मतलब है? मतलब आपने बताया कि ISO सर्टिफाइड होगा, तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स की सर्टिफिकेशन है, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक सर्टिफिकेशन होती है ISO सर्टिफिकेशन, जो कि उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ISO सर्टिफिकेशन 3000, 2000, 9000, 7000 गालिबन। तो डिफरेंट स्टेप्स की। अब ये ISO सर्टिफिकेशन, दिस इज द एक्चुअली एक्रीडिएशन काउंसिल, और यू कैन से दैट दिस इज ऑडिटिंग एजेंसी जो डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज को विजिट करेगी, उनके SOPs, उनकी अवेलेबल फैसिलिटीज़ जो कि रिक्वायर्ड हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, उनको रिव्यू करेंगे, एंड इफ दे आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, तो फिर उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाएगा, एंड सर्टिफिकेट ये डिटरमिन करेगा कि दिस इज एक्चुअली इंडस्ट्री विच इज फॉलोइंग ऑल द मिनिमम क्राइटेरिया दैट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द एजेंसी। ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन लिखी होती है ISO 9001। तो ये 9001 जो है, इसका पीछे पूरा वो होता है, लॉजिक होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री के पास 9001 सर्टिफिकेशन है तो उसका क्या मतलब है, उनके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी। ये सर्टिफिकेशन की कोडिंग है। ठीक है। ओके, एनीवन एल्स? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। Okay, if there is no question, we move next, and this is about some basic concepts. The basic concept that we have talked about here in the previous slide. For example, जहाँ पे हमने कुछ बात की है GMPs की, कुछ HACCPs की, तो food production के लिए this is necessary that we should have procedure to identify the hazard. We should have ability to determine the probability of the occurrence of the hazard, and we should have ability to control the hazard. ठीक है। इसके लिए जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो मैंने आपको कहना था कि प्रेजेंटेशन में ना मेरा अभी नाम नहीं लिखा, मैंने आपको मेल भी की थी, तो राहत रोशनी के साथ मैंने प्रेजेंटेशन का नाम लिखते हैं। सर अपना नाम बताएं। मिनाहिल नदीम। ओके मिनाहिल, मैं लिख लेता हूँ, लेकिन अभी लेक्चर चल रहा है तो आप अच्छा होता कि इसके बाद अगर बताती तो चलें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। Yeah. So now to ensure that to minimize the hazard, industrial end पे क्या है कि industry has to provide the apply the GMP, good manufacturing practices, as well as the HACCP plans. और agencies क्या करेंगी कि agencies उसको regulate करेंगी for the safe production. अब अगर फेलियर आ जाता है, या अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही हैं, हैसअप फॉलो नहीं हो रहा, फेलियर आ जाता है, तो फिर उसके बाद क्या रोल क्या है दोनों अथॉरिटीज़ का। इसमें फिर हमें डिफरेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स डिटरमिन करने पड़ेंगे पूरी प्रोसेसिंग में, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। रास्ते में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे ना, उन स्टेप्स में कुछ स्टेप्स को हम डिफाइन करेंगे कि ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं, यानी कि इन पॉइंट्स पे हम सैम्पलिंग करके डिटरमिन करेंगे कि यहाँ पे फूड जो है वो प्रॉपर प्रोसेसिंग यहाँ तक हुई है कि नहीं हुई। सो टेस्टिंग ऑफ द रोबस्टनेस ऑफ CCPs इन अ फूड प्रोसेसिंग चेन, वी हैव टू check the food processing at different critical control points, and this checking is to detect the breakdown in the food safety control, because ये ज़्यादा आसान है
बजाय उसके कि हम फूड को रॉ मटेरियल पे चेक करें और सिर्फ एंड प्रोडक्ट चेक करें। इसके बजाय ये ज़्यादा आसान है कि हम दरमियान में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे चेक करें, और अगर जहाँ पे कहीं पे एरर आए तो हम वहीं पे उसको एस्टिमेट या आइडेंटिफाई कर सकें। This deals with the errors that are not covered by GMP and the HACCP. So the failure analysis जो है बाज़ औक़ात हमें फील होता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डिफाइन हुई हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, या जो HACCP मेजरमेंट्स डिफाइन हुए हैं, दे आर नॉट प्लेइंग इनफ। तो उसके लिए we could just have some other critical check points जहाँ पे हम मज़ीद इंश्योर करने के लिए along with the HACCP and GMP हम फेलियर एनालिसिस कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ तक हमारे पास प्रॉपर सिस्टम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर ये सर्टिफिकेशन का है कि आफ्टर केयरफुल एवेलुएशन the acceptance of GMP and the HACCP plan being applied by the food producer, and if the food producer is able to apply the GMP and the HACCP, then we would issue a certification plan, or the regulatory agency would issue the certification plan जो कि किसी भी फूड प्रोड्यूसर की रेगुलेशन को या उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को चेक करके इस बात को इंश्योर करेगा कि that is actually having the minimum facilities which are required for the food production. इसके साथ साथ we can have an option to provide the necessary support to the food producers to facilitate them for the production of the safe food, and this guidance would be on the industrial level. This guidance will be on the behalf of the regulatory agencies to the industries. तो इसमें हम गाइडेंस किस किस लेवल की प्रोवाइड करेंगे कि रिस्क एनालिसिस कैसे करना है, डिफरेंट चैलेंजिंग टेस्ट जो हैं वो कैसे परफॉर्म करना है इंडस्ट्री ने, और अल्टीमेटली गोल क्या होगा कि सेफ फूड प्रोड्यूस करनी है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो these were some बेसिक पॉइंट। इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे अबाउट द रिस्क, GMPs, उसके बाद 2 बेसिक अप्रोचेस पे बात करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस की मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, और एंड पे हम इसको एक्सटेंड करके लेके जाएंगे हैसअप पे कि किस तरह से हैसअप जो है उसमें वेरिफिकेशन और क्रिटिकल लिमिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, if you guys have any question, please you can ask in the next class as well.